مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ بغل میں بشن پور ہے، ادھر ہندو بھائی بستے ہیں، ادھر میں کھریا ہے، اس میں مسلمان بستے ہیں۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کو اللہ سلامت رکھے، قبولیت کی گھڑی ہے، اس کے واسطے بھی دعا ہو جائے۔ اللہ بھائی بھائی کا پیار اور بھائی بھائی کی محبت ہندو مسلمان کو عطا فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا سچائی سے بتائیے، جب دل ملے گا نہیں تو ہاتھ ملانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بتائیے آپ۔ یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے سنت کبیر نگر، اتر پردیش میں۔ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، ضلع ہے، اس کا نام ہے، پورے ضلع کا نام ہے سنت کبیر نگر۔ کبیر داس صوفی سنت کے نام پر وہ ضلع ہے۔ جلسے میں جب کبیر داس آئے تو ادھر کے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم ہندو ہیں۔ ادھر کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو کبیر داس نے ہندو سے کہا کہ تم سر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مسلمان سے کہا کہ تم سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہندو سے کہا کہ تم سر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو، میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ دنیا جانے والی ہے کہ نہیں؟ تو جو ہندو سر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا تھا اس نے چہرے سے اشارہ کر کے سر ہلا کر کے کہا کہ ہاں دنیا جانے والی ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ جس مسلمان کو سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کبیر داس نے کھڑا کیا، اس سے پوچھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ یہ دنیا جانے والی ہے؟ مسلمان نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف خدا باقی ہے، باقی سب فنا ہو جائے گا، سب یہ دنیا جانے والی ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ ہندو کو سبق دیا، مسلمان کو سبق دیا، جو چیز جانے والی ہوتی ہے اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ صبح کو جب بادشاہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک ہریجن سڑک میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ وزیر سے بولا کہ اس ہریجن کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب اس بیچارے کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرا قصور کیا ہے، مجھ کو پھانسی پر چڑھا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا قصور تم ایک نمبر کے منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا یہ کام بگڑ گیا، یہ نقصان ہو گیا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال دے۔ تو وہ ہریجن وہ بے قصور بولا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، ہم سے بڑے منحوس تو آپ ہیں۔ تو بادشاہ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا میں کیسے منحوس ہوں؟ کہا آپ نے میرے چہرے کو دیکھا، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ نے میرے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو آپ کے جہان کا نقصان ہے، جان سلامت ہے، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میری جان تک جا رہی ہے۔ اب بتاؤ کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں؟ ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان، اس دھرتی پہ بسنے والے سب ہیں تیری گود کے پالے، سب ہیں تیری گود کے پالے، کوئی نیچ نہ کوئی مہان، سب کو سنمتی دے بھگوان۔ جنم کا کوئی مول نہیں ہے،
जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। बहुत चालाक बनते थे आप लोग। पहला सवाल हम राइट करते थे, दूसरा सवाल हम रॉन्ग करते थे। इस बार मैंने पैतरा ही बदल दिया, पहला ही सवाल हमने रॉन्ग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 4 महीना शादी को हुए, औरत को बच्चा हो गया। अब औरत घबरा करके शौहर से कहती, इतनी जल्दी बच्चा हो गया, इसका क्या नाम रखें? तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। वंदे भारत राजधानी सुपरफास्ट शताब्दी के अलावा क्या नाम रखो? जनाजे को देखिए, आप मस्जिद में जाइए, ताबूत रखा रहता है। आपने ताबूत में देखा होगा, जनाजा उठता है तो जो मर्द जनाजा होता है, मर्द का जनाजा उठता है, उसमें कोई पर्दा नहीं होता, कपड़े से घेरा नहीं होता, छतरी नहीं होती, खुला हुआ जनाजा होता है। लोग उठाते हैं, जाकर के दफन कर देते हैं। मस्जिद का ताबूत देखिए जाकर के, मस्जिद में रखा हुआ है। लेकिन जब औरत का जनाजा उस ताबूत में उठाया जाता है तो जानते हैं क्या होता है? उसमें छतरी डाली जाती है, पर्दा डाला जाता है। क्यों भाई, ये किसकी सुन्नत है? तो लिखा कि ये फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। जब वो इंतकाल करने लगी तो कहा कि मेरी अगर रूह दिन में प्रवास करे फिर भी रात में दफन करना, रात में इंतकाल करे रात में दफन करना, दिन में इंतकाल करे रात में दफन करना। और जब मेरा जनाजा उठाना तो पर्दे के साथ, छतरी के साथ उठाना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि आज तक किसी गैर मर्द ने मुझको नहीं देखा कि मैं लंबी हूं कि नाटी हूं, दुबली हूं कि पतली हूं। मैं चाहती हूं कि मर जाने के बाद भी कोई मेरा जनाजा ना देखे, ताकि अंदाजा ना लग सके कि मैं दुबली थी या पतली थी, नाटी थी या लंबी थी। मैं जीते जी पर्दे के साथ थी, मरने के बाद भी पर्दे के साथ खुदा के साथ मिलना चाहती हूं। सिनेमा हॉल में औरत बैठी है कुर्सी पर, इधर एक कुर्सी खाली है, इधर एक कुर्सी खाली है। एक मन चला जवान आकर के बोला, मैडम ये कुर्सी खाली आपकी है? कहा कि हाँ। कहा खाली है, मैं बैठ जाऊं? कहा बैठ जाओ। वो जवान बोला कि आपकी ये कुर्सी किसके लिए बुक की? ये कुर्सी खाली है, वो कुर्सी खाली है, एक आदमी और 3-3 सीट आपने बुक कराई। तो औरत की बेशर्मी देखिए, कहती है मैं अपने यार के लिए बुक कराई थी। वो कहाँ गए? कहा मेरे शौहर के जनाजे में। मेरे शौहर के जनाजे में वो है और मैं सबको छोड़ करके सिनेमा देख रही हूँ। आप बोलेंगे ये फर्जी बात है, गरीबी बात है। दुनिया में हो रहा है, क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना ई गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तब तसल्ली से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह, ये कितने चैनल वाले, अगर आपकी बीवी को आपका हाथ दिखा दिया और आप यहाँ जलसा सुन करके जब घर जाएंगे तो बड़का ड्राम में रातों रात पैक कर देगी और सीधे आप क़यामत में उठे।
जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, समझ जाइए भारी सदमा। कुर्सी पर बैठ करके है, गाल पर हाथ है, औरत है, समझ जाइए कि बहुत भारी सदमा है। उसका भाई बोलता है तुमको कौन सा सदमा, तुम्हारा शौहर चांद जैसा, तुम्हारे घर में जो खाना मिलता है वो होटल जैसा, तुम्हारा जो घर है वो जन्नत जैसा, तुमको कौन सा सदमा। माँ बाप की कितनी बड़ी दौलत होती है, हर दौलत जा करके वापिस आती है, माँ बाप की जैसी दौलत जब जाती है तो कभी वापिस नहीं होती। उस औरत का जवाब सुनिए, उसने कहा 4 साल हो गए शादी को, गोद में एक बच्चा नहीं, न बेटा है न बेटी है, कुछ भी नहीं है। बच्चे के बगैर घर में अंधेरा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छा लगता है। काश के एक बेटा होता, काश के एक बेटी होती। माँ बाप के लिए औलाद पूरी कायनात है, बच्चे हैं तो पूरी कायनात है। बच्चे के बगैर माँ बाप को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा कहाँ रहता है? बंबई में, पंजाब में। जब वो वहां से चलता है, घर आता है तो बाप को फोन करता मैं अब्बा आ रहा हूं, बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बेटे से कहता मैं आ रहा हूं। और जब वो कटिहार जंक्शन में पहुंचता है, किशनगंज रेलवे स्टेशन में पहुंचता है, बंबई से चला हुआ तो रात में पहुंचा, और जब वो किशनगंज से कटिहार से घर पहुंचा तो सुबह हो गई। अब जब वो घर पहुंचा तो हाल क्या है कि बीवी बेखबर सो रही है, बेटा खर्राटे ले रहा है। बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फर्क है, आखिरी फर्क दिखा रहा। कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता, बाप घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता है, शाम में लौट जाता है। तो बेटे ताना मारते हैं, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। उस बाप का जवाब सुनिए, बेटा तुम्हारी नफरत में मैं तुम्हारा घर छोड़ करके भाग तो गया, लेकिन तुम्हारे बच्चे की याद आ गई, तुम्हारी याद आ गई, तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। शर्म को खाक में डाल करके बेशर्म होकर के तुम्हारे घर वापस आ गया। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है, सीधे ससुराल को पकड़ लेता है। जीते जी पलट करके माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखता। कब वापिस आता है? जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है कि फुला का बाप मर गया, फुला की माँ मर गई, तो मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहा करके रोता हुआ चिल्लाता हुआ आता है, बाप का कंधा देता है। ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को अब पीट करके कुछ होने वाला नहीं है। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप तक से बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस जवान को देखिए, हाथ उठा करके यहाँ नाक पर हाथ रखे हुआ है। अभी कौन सा मच्छर बैठा है यहाँ पे? रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। आखिरी वादा अपने मेहमान से कीजिए कि जलसा खत्म हो गया है, सिर्फ दुआ के लिए बाकी रह गया है।